Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there are some candidates in the reserve list of IBPS, maybe for clerk, maybe for officer. They are very keenly awaiting whether their name will be cleared or not. More especially when I put video on SBI waitlist, one of the person commented, "Sir, clear the concept of reserve list." Many candidates are not able to distinguish between wait list and reserve list. State Bank selection is carried out by State Bank. So they adopt their own policies, own framework. They have a waitlist system in clerical cadre, but no waitlist system in officer cadre. So in SBI PO, there is neither a reserve list nor a wait list. But IBPS is a board. They conduct the examination, they shortlist certain candidates, and the respective banks have a choice to take candidates from them as per their requirement. And that's why they have a right to increase or decrease the vacancies at the time of taking their indent. So they indent, based on indent, IBPS conduct the examination, they select the people and keep them either in selected list or reserve list. Now it is individual bank how many people they need and from which list. Say there is a bank, Punjab National Bank. They require the staff in the deferred manner and they want to post the people as and when people are retiring. So they will take from the main list and they will not take any person from the reserve list. But there is another bank, those are in emergent need of staff in the month of April itself. They may go for reserve list. So reserve list clearance is not bank wise. Whether vacancies are filled in A bank or B bank, it has no impact on reserve list. Both the lists are list of selected candidate. It is a pool of candidates. It is the prerogative of individual banks whether to take same number of employees which they intended or lesser or more. And that's why a reserve list candidate in IBPS PO and clerk cannot be assured whether his name will be cleared or not. And that's why I always advise reserve list candidates to always prepare for future examination. They are not selected. They are only placed in a list which may be cleared, may not be cleared. It is different than impaneled list. This is different than wait list. This is different than any other thing. It is a board. So it is not 10% per bank. Don't confuse. People are unnecessarily confused. They go on putting RTIs to different banks to understand how many vacancies are vacant, hoping that if vacancies are vacant, they will get. It is not the case like that. And that's why I advise all the people, those are trying to gather information from A bank or B bank or C bank, it is futile exercise. If bank needs people, they will put indent on IBPS, they will get from reserve list or from main list. Certain years the entire reserve list is cleared. There are cases where reserve list was not cleared. This is based on my knowledge of things because the real information IBPS never discloses. So what are their norms, how they release the people can only be told by IBPS as there is anxiety. So based on the information that I see from the previous trends, this is my inference.
This is not based on any written guidelines. What I am telling in this video is my inference from past experience on release of reserve list. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अब कई लोग रिजर्व लिस्ट में हैं IBPS 9 में। उनका पूछना यह है कि सर हमारी रिजर्व लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी। मेरा ख्याल हमें ना कंसेप्ट को समझना चाहिए। स्टेट बैंक एक बैंक लेवल एग्जाम है, उनकी कोई पॉलिसी है, उसमें उन्होंने कहा हम वेट लिस्ट बनाएंगे, क्लरिकल कैडर में PO में नहीं बनाएंगे, उससे चलेगा काम। पर IBPS एक बोर्ड है, ये एक बैंक की सिलेक्शन नहीं है। बोर्ड एक एंटिसिपेटेड वैकेंसी लेके एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर जो उसके मेंबर बैंक्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इंडेंट करते हैं और एम्प्लॉइज को लेते हैं। वो नंबर सेम भी हो सकता है जो उन्होंने शुरू में इंडिकेट किया है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है। इसलिए हर साल आप देखेंगे कि जो नोटिफाइड वैकेंसीज होती हैं और जो फाइनली अलॉटेड नंबर होता है उसमें अंतर होता है, क्योंकि ये बोर्ड से वो स्टाफ ले रहे हैं जितना उनको चाहिए। ये रिस्पेक्टिव बैंक नहीं कंडक्ट करा रहा। अब रिस्पेक्टिव बैंक की मर्जी है कि उसको मेन लिस्ट से स्टाफ चाहिए या उसको रिजर्व लिस्ट से स्टाफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक बैंक में किसी ने 300 वैकेंसी पिछले साल दी थी और 150 लोग ज्वाइन किए तो 150 वो सीट खाली हैं तो उसको रिजर्व लिस्ट से ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस बैंक की मर्जी है कि वो सीटें ना भरे या अब उसको जरूरत ही नहीं रही, वो एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम चला ले और अगले साल के आने वाले बैच से ले ले। तो बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है ये उसके ऊपर आधारित होता है। इसलिए जो IBPS की रिजर्व लिस्ट है वो क्लियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। काफ़ी लोग इस इंफॉर्मेशन को निकालने में लगे रहते हैं, कौन से बैंक में कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितनी गैर ज्वाइनिंग हुई। रिजर्व लिस्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गैर ज्वाइनिंग के अगेंस्ट ये होगा। रिजर्व लिस्ट का मतलब है हमने सिलेक्शन करी, 10% हमने एक्स्ट्रा रख लिए हैं, अगर किसी बैंक को जरूरत होगी तो वो इस लिस्ट से ले सकता है, क्योंकि अगली सिलेक्शन होने में टाइम लगता है। और क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रिटर्न गाइडलाइंस हैं, ये कभी IBPS डिस्क्लोज नहीं करता, ये किसी को पता नहीं है। जो मैं आपको सूचना इस वीडियो में दे रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी जो मैं इंटरप्रिटेशन कर पा रहा हूँ पिछले सालों में किस तरीके से IBPS ने बिहेव किया, किस तरह से वहाँ वैकेंसीज आई और कभी बढ़ी हुई वैकेंसीज आ गई, कभी घटी हुई आ गई, कभी कम मांगे उन्होंने ज़्यादा ले लिए बाद में, कभी ज़्यादा मांगे और कम मांगे और अधिक ले लिए। तो वहाँ से ये समझ में आता है कि IBPS एक बोर्ड का रोल अदा कर रहा है। वो सेलेक्ट करके एक पूल बना रहा है, उस पूल में से मेंबर बैंक चाहें तो वो ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लेंगे। इसलिए जो लोग रिजर्व लिस्ट में हैं उनको इस चीज़ों पे वक्त जाया करने की बजाय कि हमारा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी करते रहना चाहिए। रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं है। रिजर्व लिस्ट में कहीं भी ये उन्होंने नहीं कहा है कि नॉन ज्वाइनिंग या रेजिग्नेशन के अगेंस्ट इन लोगों को लिया जाएगा। तो ये हमें डिस्टिंक्शन समझना है। और जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये कोई मेरे पास गाइडलाइंस नहीं है, कोई मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, पर जैसा होता आ रहा है उसको अनुभव के आधार पर मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके दे रहा हूँ। पर रिजर्व लिस्ट क्या है, वो कौन से रूल्स फॉलो करता है IBPS, ये सीक्रेट है उनका, केवल IBPS ही इसकी जानकारी आपको दे सकता है। पर आपकी एंजाइटी थी, आप पूछ रहे थे, तो मैंने जो अनुभव किया पिछले 10 सालों में, जब से ये रिजर्व लिस्ट आ रही है या सिलेक्शंस हो रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या आधार होगा, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसलिए मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। कोई समझे कि ये गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस नहीं है। ये मुझे गाइडलाइंस कोई मैं पढ़ के नहीं बता रहा आपको, क्योंकि IBPS बताता ही नहीं है किसी को गाइडलाइंस क्या है। पर उनके नोटिफिकेशन में देखें तो उन्होंने ये कहा रिजर्व लिस्ट बनाएंगे।
पर रिजर्व लिस्ट कैसे क्लियर होगी ये वहां पर बात नहीं कही गई है। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन में क्लियर होता है कि वेट लिस्ट किन लोगों से क्लियर होगी। वहां उन्होंने साफ लिखा हुआ है जो लोग रिजाइन करेंगे और जो लोग नॉन ज्वाइनिंग होगी। तो बिल्कुल अंतर है दोनों में। गॉड ब्लेस यू।